गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी मैथ्स विद रोहित शर्मा। और आज के सेशन में हम आपसे स्टार्ट करना चाहते हैं क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, सॉरी क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उस सेकंड को हमें इसमें सॉल्व करना है। ओके, सो विदाउट वेस्ट योर टाइम वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर सेकंड। ओके, solve 2x plus 3y is equal to 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24 and hence find the value of m for which y is equal to mx plus 3। यहाँ पे आपको दो इक्वेशंस दे रखे हैं, दोनों इक्वेशन से आपको x और y की वैल्यूज फाइंड करने हैं और x और y की वैल्यू फाइंड करने के बाद आपको एक इक्वेशन दे रखा है, ये आपको एक इक्वेशन के बने y is equal to mx plus 3 और इसमें आपको वैल्यूज पुट करके m की वैल्यू फाइंड करना है। ओके, सो सी सॉल्यूशन। Solution, here you have 2x plus 3y is equal to 11, equation number first, and 2x minus 4y is equal to minus 24 is equal to equation number second। हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशंस है, दोनों इक्वेशन से अब हम क्या करेंगे, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके हमें x और y की वैल्यू फाइंड करना है और इस वैल्यू को हमें इस इक्वेशन में रख के यहाँ m की वैल्यू को फाइंड करके देना है। ओके, सो फर्स्टली बाय using substitution method, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज जो करना है वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड, जैसे में आप चाहो उसमें कर सकते हो। मैं यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन से यूज कर रहा हूं, सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 2x is equal to 11 minus 3y. Okay, now x is equal to 11 minus 3y upon 2. It's equation number third. This is your equation number third. Okay, now done. Now x is value, x's value is put in equation number second by substitution method. We can say that x is substitute in equation number second. Okay, now we will write here substitute the value of x in equation second, okay, now see it, 2 into x's value is 11 minus 3x, 11 minus 3y upon 2 minus 4y is equal to minus 24. Now 2 is 2 cancelled, then 11 minus 3y minus 4y is equal to minus 24. So 3y minus 4y is minus 7y is equal to minus 24 and 11 is transporting in another side, then 11 minus 24 and minus 11, then minus 7y is equal to, here we have minus, then 24 plus 11 is 35. Okay, again minus and minus cancelled, then y is equal to 35 upon 7 is transporting in divided side, so 7 1s are 7 and 7 5s are 35, so y is equal to 5. Okay, now we find the value of y is equal to 5. Now y is put in equation number third, y is put
in equation third. Here x is equal to 11 minus 3 into 5 upon 2. So x is equal to 11 minus 3 5 is 15 upon 2. So x is equal to 15 minus 11 because 15 is greater than 11. Then we have 4 minus 4 upon 2. So 2 ones are 2 and 2 twos are 4. So here x is equal to minus 2. x और y वैल्यू आपको फाइंड होके मिल गया. अब फाइंड होने के बाद इस वैल्यू को आपको क्या करना है, इजीली उसको उठा के यहाँ पे पुट करना है और m की वैल्यू को फाइंड करना है. ओके, सो सी y is equal to mx plus 3. So we have y's value is 5 and x's value is minus 2. Now x and y's value is put here. यहाँ पे x और y की वैल्यू के यहाँ पे रखने पर तो रखते हैं x is y वैल्यू is 5 and m into x is वैल्यू is minus 2 and plus 3. 5 is equal to m into minus 2, so minus 2m and plus 3. Plus 3 is transposing an another side without a minus sign, sorry, with minus sign. Minus 2m is equal to 5 minus 3. So minus 2m is equal to minus 2 and plus 2 and m is equal to 2 upon minus 2. Minus minus cancelled. Then m is equal to minus 1. It's your final answer. Okay. Thank you everyone. Now question number 3rd. Here question number 3rd, it says that form the pair of linear equations for the following problems. मतलब यहाँ पे कुछ लीनियर इक्वेशंस हैं जो आपको एक लीनियर पेयर है जो फॉर्म में दे रखे हैं, उनसे आपको क्या करना है, उन प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करना है एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड. यानी कि यहाँ पे आपको दो इक्वेशंस दे रखे हैं, उन इक्वेशंस की जो फॉर्म है वो आपकी लीनियर पेयर्स में है. उस लीनियर पेयर्स में जो इक्वेशंस आपको दे रखे हैं उन इक्वेशंस को आपको क्या करना है, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको सॉल्व करना है. ओके, सो इट्स फर्स्ट पार्ट इट सेज दैट द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26. यहाँ पे दो नंबर्स हैं, दो नंबर्स का डिफरेंस जो है ना वो 26 है. तो फर्स्टली सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके नंबर्स को लेट करते हैं. सो फर्स्टली लेट्स लेट द नंबर्स. सॉल्यूशन let the numbers be x and y. मैंने यहाँ पे नंबर्स को x और y लेट कर लिया. देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन the difference between two numbers is 26. आपको दो नंबर्स का सम दे रखा है 26, डिफरेंस दे रखा है 26. सो x माइनस y इज इक्वल टू 26. इट्स इक्वेशन नंबर फर्स्ट. दो नंबर्स का डिफरेंस दे रखा है 26. x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 हो जाएगा. नेक्स्ट इन सेकेंड कंडीशन एंड वन अनदर नंबर यानी कि एक अदर नंबर जो है इज 3 टाइम्स द अदर. यानी कि अब सपोज करो आपकी ये फर्स्ट कंडीशन थी, आपकी फर्स्ट कंडीशन अप्लाई हो गई. फर्स्ट कंडीशन एंड इट्स सेकेंड कंडीशन इज सेज दैट वन अनदर नंबर इज थ्राइस टाइम 3 टाइम्स. तो वन सेकेंड कंडीशन आपके पास जो सेकेंड नंबर है वन अनदर नंबर, तो वन नंबर इज x एंड अनदर नंबर इज y.
सो वन नंबर अनदर नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, मतलब एक नंबर आपका 3 टाइम्स है तो ये आपका 3 टाइम्स हो गया। सो दोनों 3 टाइम्स करने के बाद ये इक्वल है। देन x, अब 3y को इधर ट्रांसपोजिंग करते हैं, -3y इज इक्वल टू 0। इट्स इक्वेशन नंबर सेकेंड। इस तरीके से आपके फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन दोनों जनरेट होगा। नाउ वी विल सॉल्व द इक्वेशन, वी विल सॉल्व दीज इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, by using substitution method. Substitution मेथड का यूज करते हैं। एक इक्वेशन हम यहां से लेते हैं, यही इक्वेशन ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड x is equal to 3y, it's equation number third. Okay, x is equal to 3y equation number third में जनरेट हो गया। now we have substitute the value of x in equation first. So x's value is 3y, so put in equation number first, 3y minus y is equal to 26. Now 3y minus y is equal to 2y is equal to 26 and y is equal to 26 upon 2. 2 ones are 2 and 2 ones are 2, 2 3s are 6. So y is equal to 13. Y is equal to 13. So y input in equation number third. Y is put in equation third. X is equal to 3 into 13. So x is equal to 13 into 3 is 39. Here आपकी बोथ वैल्यूज आपकी फाइंड होकर मिल गई। ओके, तो इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको यही बोल रहा था कि दो नंबर्स का डिफरेंस था, वो हमने डिफरेंस यहाँ से फाइंड किया, और अदर इक्वेशंस में बोला है कि वन अनदर नंबर वन जो है दूसरे नंबर्स का 3 टाइम्स है, तो आपका जो नंबर है वो हमने 3 टाइम्स कर दिया, 3y हो गया। इस तरीके से इक्वेशन इसकी जनरेट हो गई। अब इक्वेशन के बाद आपको क्या करना है, इससे थर्ड इक्वेशन जनरेट करके इस वैल्यू को पुट कर देना है, यानी सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो वैल्यू आपकी फाइंड होके मिल जाएगी। ओके, थैंक यू एवरीवन।